بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ اسلامی سال کا آغاز محرم میں حضرت امام حسین کی قربانی سے شروع ہوتا ہے اور اختتام ذی الحج میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی شادی اپنی چچا زاد حضرت سارہ سے ہوئی، لیکن وہ ایک عرصے تک اولاد کی نعمت سے محروم رہے۔ ایک دن حضرت سارہ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، آپ ہاجرہ علیہ السلام سے نکاح کر لیں، شاید اللہ تعالیٰ ان کے بطن سے اولاد عطا فرما دے۔ دراصل یہ سب کچھ من جانب اللہ تعالیٰ ہی تھا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اپنی زوجیت میں لے لیا اور پھر شادی کے 1 سال بعد ہی انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنم دیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 سال تھی۔ جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام امیس سے تھی تو فرشتے نے آپ علیہ السلام کو لڑکا ہونے کی نوید سنائی تھی اور اسماعیل نام رکھنے کو کہا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام 1800 قبل مسیح میں پیدا ہوئے تھے۔ ایک نئی آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام دعاؤں، آرزوؤں اور تمناؤں کے بعد پیرانہ سالی میں پہلے فرزند کی پیدائش پر خوشیوں کا بھرپور اظہار بھی نہ کر پائے تھے کہ انہیں ایک اور آزمائش سے گزرنا پڑا۔ وہ بحکم الہی نومولود لخت و جگر اور فرما بردار بیوی کو ملک شام سے ہزاروں میل دور ایک ایسی وادی میں چھوڑ آئے کہ جہاں میلوں تک نہ پانی تھا، نہ چرند پرند، نہ آدم تھا، نہ آدم زاد۔ بے اب و گیاں ویرانے موادی فران کے سنگلاہ کالے پہاڑوں کے درمیان تپتے صحرا کے ایک بوڑھے درخت کے نیچے اللہ کی ایک نیک اور برگزیدہ بندی اپنے نومولود معصوم بیٹے کے ساتھ چند روز سے قیام پذیر تھی۔ جو زادے راہ ساتھ تھا ختم ہو چکا۔ ماں بیٹا بھوک پیاس سے بے حال ہیں۔ ماں کو اپنی تو فکر نہیں، لیکن بھوکے پیاسے بچے کی بے چینی پر ممتا کی تڑپ فطری امر ہے۔ لیکن اس لکودک صحرا میں پانی کہاں؟ جوں جوں لختے جگر کی شدت پیاس میں اضافہ ہو رہا تھا، ممتا کی ماری ماں کی بے قراری بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس حالت اضطراب میں قریب واقع پہاڑی صفا پر چڑھی کہ شاید کسی انسان یا پانی کا کوئی نشان مل جائے، لیکن بے سود تڑپتے دل کے ساتھ بھاگتے ہوئے ذرا دور دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھی، لیکن بے فائدہ۔ اس طرح دونوں پہاڑوں کے درمیان پانی کی تلاش میں 7 چکر لگایا۔ 7 چکر مکمل کر کے ادھر اللہ جل شانہ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے شیرخوار اسماعیل کے قدموں تلے دنیا کے سب سے متبرک اور پاکیزہ پانی کا چشمہ جاری کر کے رہتی دنیا تک کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ اللہ پر توکل کرنے والے صبر و شکر بندوں کو ایسے ہی پیش و قیمت انعام سے نوازا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحمت فرمائے، اگر وہ پانی سے چلو نہ برتی اور اسے رکنے کا نہ کہتی تو وہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ آب زمزم غذا بھی ہے، شفا بھی ہے، دوا بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ماں بیٹے کے لیے بہترین غذا کا بندوبست کیا بلکہ تا قیامت مسلمانوں کے فیض یاب ہونے کا وسیلہ بنا دیا۔ مقدس ترین شہر حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے صاحبزادے کے ساتھ وہیں رہ رہی تھی کہ ایک روز عرب کے قبیلے بنو جرہم کے کچھ لوگ پانی کی تلاش میں وہاں پہنچے اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی اجازت سے وہاں رہائش اختیار کر لی۔ پھر دوسرے قبائل بھی وہاں آ کر آباد ہوئے اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے وہ سنسان صحرا دنیا کے سب سے مقدس و متبرک اور عظیم شہر مکہ مکرمہ میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے بیٹے کی پرورش اور تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ سال کا طویل عرصہ جیسے پلک جھپکتے گزر گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکے کی مقدس فضاؤں میں آب زمزم پی کر اور صبر و شکر کی پیکر عظیم ماں کی آغوش تربیت میں پروان چڑھتے ہوئے بہترین صلاحیتوں کے مالک خوبصورت نوجوان کا روپ
गुजार चुके थे कि एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, तशरीफ लाए और फरमाया, ए बेटा, मैं ख्वाब देखता हूँ कि गोया तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, तो तुम सोचो कि तुम्हारा क्या ख्याल है। फरमा बरदार बेटे ने सर तस्लीम खम करते हुए फरमाया, अब्बा जान, आप अलैहिस्सलाम को जो हुक्म हुआ है वही कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो आप अलैहिस्सलाम मुझे साबरीन में पाएंगे। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम का ये सआदत मंदाना जवाब दुनिया भर के बेटों के लिए अदाब फर्जंदी की एक निशानी है। अताअत, फर्मा बरदारी और तस्लीम व रजा की इस कैफियत को अल्लामा इकबाल ने यूं बयान किया कि ये फैजान नजर था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माईल को अदाब फर्जंदी। मीना की जानब सफर और शैतान की चालें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे का जवाब सुना तो इन्हें सीने से लगाया और हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास ले आए। फरमाया, ए हाजरा, आज हमारे नूरे नजर को आप अपने हाथों से तैयार कर दीजिए। ममता की मुकद्दस शीरी और अनमोल जज्मों में डूबी माँ ने अपने इकलौते बेटे को नई पोशाक पहनाई, आंखों में सुरमा, सर में तेल लगाया और खुशबू में रचा बसा कर बाप के साथ बाहर जाने के लिए तैयार कर दिया। इसी असना में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी एक तेजधार छुरी का बंदोबस्त कर चुके थे। फिर बेटे को साथ लेकर मक्के से बाहर मिना की जानब चल दिए। शैतान ने बाप बेटे के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन ली थी। जब इसने सब्रो इस्तकामत और अताअत खुदाबंदी का ये रूह परवर मंजर देखा तो मुजर्रब हो गया और इसने बाप बेटे को इस कुर्बानी से बाज रखने का फैसला कर लिया। चनाचे हमरा अकबा के मकाम पर रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ मौजूद फरिश्ते ने कहा, ये शैतान है, इसे कैंकरियां मारिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अकबर कहकर इसे 7 कैंकरियां मारी, जिससे वो जमीन में दंस गया। अभी आप अलैहिस्सलाम कुछ ही आगे बढ़े थे कि जमीन ने इसे छोड़ दिया और वो हमरा वस्ता के मकाम पर फिर वर्गलाने के लिए आ मौजूद हुआ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दोबारा कैंकरियां मारी, वो फिर जमीन में दंसा, लेकिन आप अलैहिस्सलाम कुछ ही आगे बढ़े थे कि वो जमरा आला के मकाम पर फिर मौजूद था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तीसरी बार अल्लाह अकबर कहकर कैंकरियां मारी तो वो जमीन में दंस गया। अल्लाह तबारक व तआला को इब्राहिम खलील अलैहिस्सलाम का शैतान को कैंकरियां मारने का अमल इस कदर पसंद आया कि इसे रहती दुनिया तक के लिए हज के वाजिबात में शामिल फरमा दिया। शैतान अपनी नाकामी पर बड़ा परेशान था। तीनों मर्तबा की कैंकरियों ने इसके जिस्म को जख्मों से चूर कर दिया था। अचानक इसे एक नई चाल सूझी और वो औरत का बेस बदल कर बागम बाग हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और बोला, ए इस्माईल अलैहिस्सलाम की माँ, तुम्हें इल्म है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तुम्हारे लख्ते जिगर को कहाँ ले गए हैं? हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, वो बाहर गए हैं, शायद किसी दोस्त से मिलने गए हैं। शैतान ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, वो तेरे बेटे को ज़िबा करने वादिये मना में ले गए हैं। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने हैरत और तअज्जुब का इजहार करते हुए फरमाया, ये कैसे मुमकिन है कि एक शफीक और मेहरबान बाप अपने चहेते और एक लोते बेटे को ज़िबा कर दे। इस मौके पर बेसाख्ता शैतान के मुंह से निकला, वो ये सब अल्लाह ताला के हुक्म पर कर रहे हैं। ये सुनकर सब्र शुक्र और अताअत व फर्मा बरदारी की पैकर अल्लाह की बरगज़ीदा बंदी ने फरमाया, अगर ये अल्लाह ताला का हुक्म है तो एक इस्माईल अलैहिस्सलाम क्या, इसके हुक्म पर 100 इस्माईल कुर्बान हैं। अल्लाह ताला ने कुर्बानी कबूल फरमा ली। शैतान यहाँ से नामुराद होकर वापस मिनाह की जानब पलटा, लेकिन वहाँ का ईमान अफरोज मंजर देखकर अपने सर पर खाक डालने और चेहरा पीटने पर मजबूर हो गया। वादिये मिनाह के सियाह पहाड़, नीले शफाफ आसमान पर रोशन आग बरसाता सूरज, फलक पर मौजूद तस्बीह तहलील में मसरूफ मलाइका अल्लाह की राह में अपनी मताए अजीज की कुर्बानी का महीरल अकौल मंजर देखने में महू थे। मक्के से आने वाली गर्म हवाएं भी मिनाह की फजाओं में मौजूद इबादत व अताअत, तस्लीम व रजा और सब्र व शुक्र की एक अजीम दास्तान रकम होते देख रही थी। रवायत में आता है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेटने की हदायत दी तो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बा जान, मैं पेशानी के बल लेटता हूँ ताकि आप अलैहिस्सलाम का चेहरा मुझे नजर आए और आप अलैहिस्सलाम भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें ताकि जब आप अलैहिस्सलाम मुझे ज़िबा कर रहे हो तो शफ़क़त पदरी के अमरी अलाही पर गालिब आने का अमकान न रहे। सब्र व इस्तकामत के कोहे गिरा वालिद ने गोशा जिगर के मशवरे पर अमल किया
किया, और जब इस्माइल अलैहिस्सलाम लेट गए तो तकमील अहकाम खुदावंदी में तेजदार छुरी को पूरी कुव्वत के साथ लखते जिगर की गर्दन पर फेर दिया। बाप बेटे की इस अजीम कुर्बानी पर कुदरत खुदावंदी जोश में आई और अल्लाह जुल्शाना के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत के बागात में पले सफेद रंग के खूबसूरत मेंढे को लेकर हाजिर हुए। इब्राहिम खलील अलैहिस्सलाम ने ज़िबा से फारक होकर आंखों से पट्टी हटाई तो हैरत ज़दा रह गए। बेटे की जगह एक हसीन मेंढा ज़िबा हुआ पड़ा था, जबकि इस्माइल अलैहिस्सलाम करीब खड़े मुस्कुरा रहे थे। इसी असना में गैब से आवाज आई, ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। बेशक हम नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस बेमिसाल जज्बा एसार, अताअत व फरमाबरदारी, जुर्रत व इस्तकामत, तस्लीम व रजा और सब्र व शुक्र पर मोहर तस्दीक साबित करते हुए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, और हमने इस्माइल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी पर इसका फदिया दे दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपने दोनों बरगजीदा और जलील कदर बंदों की ये अदा इस कदर पसंद आई कि इसे अताअत, अबादत और कुर्बत इलाही का जरिया करार देते हुए क़यामत तक के लिए जारी फरमा दिया। सआदतमंद बेटे का वालिद के मशवरे पर अमल। अभी आप अलैहिस्सलाम 15 बरस के ही हुए थे कि वालदा माजिदा वफात पा गई। वालदा की जुदाई का आप अलैहिस्सलाम को बड़ा सदमा था। आप अकेले रह गए थे। चनाचे वालिद के पास मुल्क शाम जाने का इरादा फरमाया, लेकिन कबीले और शहर के लोगों को आप अलैहिस्सलाम की जुदाई गवारा न थी। लिहाजा कबीले वालों ने आप अलैहिस्सलाम का निकाह अमाली कबीले की एक लड़की अमारा बिनते साद से कर दिया। एक मर्तबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिलने के लिए आए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पर मौजूद न थे। उनकी अहलिया का रवैया इंतहाई नामनासिब था, तो वो बेटे को इन खातून से अलहदगी इख्तियार करने का पैगाम देकर चले गए। आप अलैहिस्सलाम ने वालिद की नसीहत पर अमल किया। फिर कबीले के लोगों ने आप अलैहिस्सलाम की शादी कबीला जरहम की खातून सैयदा बिनते मजाज से कर दी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर आए तो इस बार भी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मौजूद न थे, लेकिन उनकी बीवी की सआदतमंदी, शुक्रगुजारी और फरमाबरदारी की बिना पर उनसे बहुत खुश हुए। खाना काबा की तामीर में हिस्सा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर के दौरान अपने वालिद के शाना बशाना काम किया। आप अलैहिस्सलाम पत्थर और गारा वालिद को देते जाते और वो इन्हें दीवार पर चुनते रहते। रवायत में है कि खाना काबा की दीवारों में जो पत्थर इस्तेमाल हुआ, इसे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने 5 पहाड़ों से जमा किया था, जिनके नाम किताबों में कुछ इस तरह हैं: तूरे हिरा, तूरे जीता, तूरे लबनान, तूरे सीना और तूरे जुदा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की निशानदही पर जिब्ले अबूकिये से हुजरा असवद लेकर आए, जो जन्नत का याकूत है। सूरतुल बकरा आयत नंबर 127 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जब इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की बुनियादें ऊंची कर रहे थे तो दुआ किए जाते थे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमारी ये खुदमत कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला और जानने वाला है। खाना काबा के पहले मुतवली तामीर मुकम्मल होने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की सफाई, इमामत और आने वाले ज़ायरीन की खिदमत समेत तमाम काम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के सपुर्द फरमाए और इनको नसीहत और हदायत देते हुए बैतुल्लाह शरीफ का मुतवल्ली मुकर्रर फरमाया। फिर आप अलैहिस्सलाम खुद वापस मुल्क शाम चले गए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वफात के बाद आप अलैहिस्सलाम के बेटे नाबित बिन इस्माइल अलैहिस्सलाम काबे के मुतवल्ली बने। नबूवत का दायरा अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हजाज़े मुक़द्दस और इसके आसपास की तमाम आबादियों नेज़ कौमे जरहम, कौमे अमालिक और अहले यमन की तरफ नबी बनाकर भेजा। आप अलैहिस्सलाम हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद आला हैं। औसाफ हमीदा कुरान मजीद में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के 3 औसाफ नहायत सराहत के साथ बयान किए गए हैं। तमीर काबा के दौरान अपने वालिद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के शाना बशाना शरीक रहे। आप अलैहिस्सलाम वादे के बड़े पक्के और सच्चे थे। आप अलैहिस्सलाम लोगों को नमाज और ज़कात का हुक्म देते रहते थे ताकि वो अल्लाह के अज़ाब से बच जाएं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, ए नबी, किताब में इस्माइल अलैहिस्सलाम का भी जिक्र कीजिए, बेशक वो वादे के सच्चे और हमारे भेजे हुए नबी थे और वो अपने घर वालों को नमाज और ज़कात की तालीम देते थे और वो अपने परवरदिगार के यहाँ पसंदीदा और बरगजीदा थे।
عزیز دوستو، امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ دوستوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔